Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello, and once again we meet for me to continue teaching you the new subject of cost accounting, and in that the very first chapter is called as Introduction to Cost Accounting, because almost for all of you this subject in the category of accountancy is a little different from what you have normally done. Okay, normally आपको financial costing की आदत हो गई होगी, journal, ledger, balance sheet, ये एक अलग branch है accountancy का. Now, till now, what has been explained to you? Well, cost क्या होता है, costing क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, और उसके अंदर आप कॉस्ट रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल कैसे करोगे. ओके, आई एम नॉट व्हाट यू कॉल एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू यू बिकॉज इट्स डन इन द लास्ट 2 लेक्चर्स. देन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप क्या होता है, उसके अंदर कॉस्टिंग का, कॉस्ट रिपोर्टिंग का एंड कॉस्ट कंट्रोल का. इफ़ यू डू कॉस्टिंग, इफ़ यू डू कॉस्ट कंट्रोल, इफ़ यू डू कॉस्ट रिपोर्टिंग, कि आप व्हाट ऑब्जेक्टिव्स कैन यू अचीव. अगेन I am just recapping what has been done in the past tense. Also, importance. सर नया सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है हमको? वो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स, वो काफ़ी नहीं था? नहीं, वो काफ़ी है, बट उसका यूज़ अलग है. ओके, ये अलग यूज़ देता है, इसके एडवांटेजेस अलग होते हैं. मैनेजमेंट को इसका फ़ायदा होता है, ओनर्स को इसका फ़ायदा होता है, वर्कर्स को इसका फ़ायदा होता है, सरकार को होता है, ग्राहकों को होता है, और नॉर्मल हमारी जनता को फ़ायदा होता है. कैसे होता है ये सब लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया गया था. इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में आई एक्सप्लेन टू यू कि कॉस्ट को ना कौन से अलग अलग एंगल से आप देख सकते हो. ओके, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था. घर में मम्मी आपके लिए मम्मी है, किसी के लिए पत्नी है, किसी के लिए बहू है, किसी के लिए बहन है. तो मतलब द फिगर, द मदर, द ह्यूमन बीइंग इज द सेम. डिफरेंट पीपल लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. तो कॉस्ट को अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है. कौन से एंगल से देखा जा सकता है? बिहेवियर, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन, एलिमेंट्स, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, या तो फंक्शंस. एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी क्विकली एक्सप्लेन टू यू. बिहेवियर के टाइप्स क्या होते हैं, टाइम के हिसाब से क्या होता है, मैनेजमेंट के हिसाब से ये दिस कंप्लीट ऑटोबायोग्राफी वाज एक्सप्लेन टू यू. एलिमेंट्स के हिसाब से क्या होता है,
कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट्स के हिसाब से, एंड इवेंचुअली फंक्शंस के हिसाब से. टुडे व्हाट एम आई डूइंग? बेस्ड ऑन माय लास्ट लेक्चर विच वाज कॉस्ट को ये एंगल से देखे तो क्या नाम देंगे, वो एंगल से देखे तो क्या नाम देंगे. तो आज कुछ एंगल्स हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझसे सीखोगे. सो लेट्स ट्राई टू use the knowledge of our last lecture in maybe MCQ style questions today. So here goes. Question ऊपर कहता है, indicate whether the following materials are direct or indirect with reference to the final product. Now, what does this direct and इनडायरेक्ट मीन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? वेन एवर यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, लेट्स से अ मोबाइल फोन. ओके, एग्जाम्पल, चलो मोबाइल में हमेशा बोलते रहता हूँ. ये चश्मा जो मैंने पहना है, जो आप में से मेनी ऑफ यू मे बी वेयरिंग, चश्मा किस में आया? ऐसे करके एक डब्बे में आया होगा. ओके, ये चश्मे के लिए टू मैन्युफैक्चर दिस चश्मा विच इज़ अ प्रोडक्ट, व्हाट डू यू वांट? आई रिक्वायर द फ्रेम, आई रिक्वायर दीज ग्लासेस, आई रिक्वायर सम स्क्रूज छोटे छोटे, आई रिक्वायर सम कलरिंग, आई रिक्वायर सम प्रिंटिंग टू बी डन. अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कैसे बनाओगे आप? ये तो मतलब मिनिमम मांगता है हमको. ओके, आप जाके अगर रास्ते पे जो what do you call पानी पूरी, दही पूरी बेचता है, अगर उसको बोलोगे कि हमको एक प्लेट दही पूरी दो, और वो पूरी थमा देगा, दही नहीं देगा उसके अंदर, तो आप कंप्लेन करोगे, बोले यार मतलब ये नाम है दही पूरी, उसमें दही तो होना चाहिए ना, वो तो मेन चीज़ है. हाँ, उसको कहते हैं डायरेक्ट मटीरियल. ओके, इनडायरेक्ट मटीरियल क्या है? ये इसके बगैर चश्मा बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? हाँ, उसको आप थोड़ा प्रेजेंटेबल करने के लिए ये बॉक्स में आपको डालना पड़ता है. आई एम नॉट वेयरिंग दिस बॉक्स, नो, आई एम वेयरिंग द स्पेक्टिकल्स, द चश्मा, वो मेन प्रोडक्ट है. उसको बनाने के लिए जो माल लगता है डायरेक्ट. ओके, उसको मे बी पैक करने के लिए जो लगता है वो आप बोल सकते हो इन डायरेक्ट. ओके, सो इन दिस लिस्ट व्हाट हैव यू टू फाइंड आउट? एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को बनाने में ये जो लिस्ट दिया है, ओके, क्या वो डायरेक्टली रिक्वायर्ड है, क्या वो इनडायरेक्टली रिक्वायर्ड है? सो आई रिपीट, इफ आई हैव मेरे बाजू में, मेरे सामने कीबोर्ड है, कीबोर्ड में तो प्लास्टिक का ज़रूरत पड़ेगा, बटन्स की ज़रूरत पड़ेगी, अंदर एक सर्किट होगा, उसका ज़रूरत पड़ेगा. हाँ, जो बॉक्स है बिना बॉक्स के बेच सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. काफ़ी लोग दुबई जाते हैं और जब दुबई से आते हैं ब्रांड न्यू मोबाइल खरीद के लेके आते हैं, एंड समटाइम्स वो बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का बॉक्स नहीं लेके आते हैं, बॉक्स रख देते हैं. क्यों? अरे बॉक्स के साथ आएगा तो उन लोग बोलते हैं कि कस्टम लगेगा, कस्टम वाला सोचेगा कि ये तो ब्रांड न्यू है, इंडिया में जाके ये बेच देगा. रिपीट, उसकी ज़रूरत नहीं. टीवी के बॉक्स के बगैर टीवी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम देने वाला, वो इनडायरेक्ट मटीरियल होता है. सो अबाउट ऑयल यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन. एक मिनट, लेट मी गिव यू अ बेटर एग्जाम्पल. व्हाट इज अ बेटर एग्जाम्पल? सो उसका मतलब क्या है? अरे बाबा, मशीन में पहिए होते, व्हील्स होते, व्हील्स घूम रहे, घूमिंग. ओके, and to make sure that those wheels are घूमिंग, okay, they are rotating, you have to oil. अच्छा, ये ऑयल से प्रोडक्ट का क्या कनेक्शन है? देखो, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. दिस lubricating oil is put into a machine and that machine manufactures the product. The oil, this oil, machine oil, does not directly go into the product. Okay, अगर वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में जाता है, प्रोडक्ट को कवर करता है, तो फिर वो डायरेक्ट मटीरियल है, बट ये इनडायरेक्ट है. देयरफॉर द फर्स्ट ऑप्शन, that is oil used for lubricating machines, is indirect
मटीरियल. आफ्टर दैट एक्चुअली इन दिस क्वेश्चन आप नोटिस करोगे, नोटिस करना, ओके मैं बता रहा हूँ, वायर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स. ना होल्ड ऑन, ये क्या है? वायर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स. ओके डोंट वरी, बाकी का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दे दूंगा. ये नीचे जो है दिस इज एन इलेक्ट्रिक मोटर. ओके तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ वायरिंग इन इट. कॉइलिंग फैन में होता है, मोटर्स में जहां पे भी मोटर होता है वहां पे ये कॉपर कॉइलिंग होता है. अच्छा वो नहीं रहेगा तो क्या, अरे फिर मोटर कैसे काम करेगा? मोटर बनेगा ही नहीं, तुम्हारा मोटर बनेगा ही नहीं, तुम्हारा मोटर घूमिंग नहीं करने वाला है. तो बाबा विदाउट वायर्स यू, नॉट जस्ट यू, एनीबडी कैन नॉट मेक एन इलेक्ट्रिक मोटर. तो बाबा वो तो डायरेक्ट. देन बॉटल्स यूज्ड फॉर फिलिंग इन अ सॉफ्ट ड्रिंक. ड्रिंक को ऐसे नहीं है कि बाबा जाके आपने ना वो अच्छा कोई आपको क्लीन लेक दिखा, आपने उसमें से पानी ले लिया और पी लिया. नहीं बाबा, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए बॉटल को होना ज़रूरी है. अदरवाइज हाउ कैन यू ट्रांसपोर्ट इट, हाउ कैन यू होल्ड इट इन योर हैंड, हाउ कैन यू सिप फ्रॉम इट? तो वो तो मांगता ही है. इट्स अ मेन पार्ट ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक. सो डायरेक्ट मटीरियल. ओके हाँ, उसको अगर कोई क्रेट में डालते हैं ना, क्रेट 1 2 3 4 5 6 ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, तो वो क्रेट ओके जिसमें देयर आर मल्टीपल बॉटल्स पुट, वो इनडायरेक्ट होगा. ओके बट ये बॉटल तो मेन है, दैट इज इन विच यू स्टोर द सॉफ्ट ड्रिंक. गनी बैग्स यूज्ड फॉर फिलिंग इन शुगर. इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट मटीरियल, क्योंकि फिर शुगर को आप ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? अच्छा मतलब मुट्ठी भर शुगर लेके तो आप घूम फिर नहीं सकते हो. Ingots used by a foundry making castings. Now the thing is ingots वही समझ में आता नहीं है. ओके एंड विच इज़ नॉट आपका मिस्टेक नहीं है, आप कोई फैक्ट्री में जाके तो काम करती नहीं, बट इन द फैक्ट्री अगर आप जाओ या गूगल और यूट्यूब पे थोड़ा कुछ देख लेना. ओके यू विल फाइंड दैट देर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स ओके जिसको एक मोल्ड में बनाया जाता है. तो if I will show you a mobile phone, okay, I'm just trying to search a mobile phone. हाँ okay दिख गया मेरे को यहाँ पर. So okay just a minute. Okay ये मोबाइल फोन एक मोल्ड में, इसका जो कवरिंग होता है एक मोल्ड में आता है. ओके उसमें प्लास्टिक और मेटल वॉट एवर इज इट, दैट मोल्ड जिसके अंदर वो लिक्विड, हॉट लिक्विड पोर किया जाता है, देन इट सॉलिडिफाइज. दैट इज नथिंग बट दी वर्ड इनगॉट, जिससे कास्टिंग्स बनाए जाते हैं. ओके एल्यूमिनियम का रहेगा, स्टील का रहेगा, आयरन का रहेगा. ओके उसके बगैर वो प्रोडक्ट नहीं बन सकता है. ओके यू कैन नॉट हाथ से लेके, मिट्टी का नहीं है जो हाथ से लेके बना सकते हो. तो बाबा दैट इज रिक्वायर्ड ताकि वो डिज़ाइन का प्रोडक्ट बन सके. तो बाबा इट इज़ अ डायरेक्ट मटीरियल. कुशन सीट्स टू बी फिक्स्ड इन अ पैसेंजर कार. नाउ ऑब्वियसली ना एक कार्टून आता था फ्लिंटस्टोन्स. ओके उसमें इंजन नहीं होता था गाड़ी के अंदर. ओके ऐसा फ्लैप करके दौड़ाना पड़ता था. तो आई रिपीट, नाउ इन एनी पैसेंजर कार you will require seats. It is a main part. It brings the comfort of traveling in a car. उसके बगैर गाड़ी अधूरी है. तो वो भी डायरेक्ट मटीरियल है. शुगर केन यूज्ड फॉर मेकिंग शुगर. अरे बाबा शुगर मेन चीज़ ही होगा ना, उसमें से तो उन लोग शुगर जनरेट करेंगे. स्पीकर्स इन अ रेडियो सेट. वेल आपने कभी भी अगर रेडियो सेट देखा है, आई डोंट थिंक उसमें से कोई आवाज़ बाहर आएगा, वेदर इट इज़ एन ओल्ड रेडियो सेट और अ मॉडर्न वन. अरे बाबा आवाज़ अगर बाहर आना है तो स्पीकर तो लगेगा ना उसके अंदर. सो स्पीकर के बगैर हाउ कैन यू इमेजिन अ रेडियो सेट और अ मॉडर्न ब्लूटूथ स्पीकर. ओके डायरेक्ट मटीरियल. नेल्स यूज्ड इन अ शू. देखो जब आई वॉज ट्राइंग टू सर्च फॉर दिस ना, सो देन आई कैन पुट एन इमेज. ये इमेज मेरे सामने आ गया, मैं भी थोड़ा चकरा गया, मतलब ये क्या है, मतलब नहीं इन अ वे तो करेक्ट ही है ना. ओके नेल्स पे शूज़ है, बट देन आई टोल्ड नहीं गूगल जी ये गलत है बाबा, ऐसा मेरे को बच्चों को नहीं पढ़ाने का है. हाँ दिस इज़ व्हाट आई मेंट. तो जूता प्रोडक्ट है, उसके अंदर एट द वेरी एंड
nails have been put. Okay, it keeps, okay, obviously ना जूता पहन के घूमना है, so the entire body weight, the up down left right, the running, जूता तो लेता है, it has to be strong, so nails are embedded. Without that वो जूता बनने से रहा. Okay, yes, फेविकॉल, glue, leather, वो सब तो डालते ही डालते हैं, but yes, okay, many sandals and shoes have nails embedded in it. It is a main part of making that shoe. It is a direct material. And last, milk used for making ice cream. Obviously रे, जितना मुझे पता है कि मेरे एज तक आते आते 99% of ice creams are made from milk, and then the flavoring is done. It is a direct material. So I repeat, this was a question to help you कि बाबा फाइनल प्रोडक्ट को अगर आप देखो, जूता उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, आइसक्रीम उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, बुक उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है. मैंने वो 8th वाला पढ़ा नहीं. पेपर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग अ बुक. ऑब्वियसली बुक है तो पेपर तो होना ही चाहिए. इट्स नॉट अ डिजिटल बुक. ओके, देयर हैव टू बी पेजेस जिससे वो बुक बनता है, उसको बुक का नाम दिया जाता है. ओके, सो दैट वाज द 8th वन. दिस वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. नाउ we'll take another question. ये किसके लिए है? State whether the following should be classified as direct or indirect labor, not material. Now again you may say, अभी सर ये क्या है labor? अच्छा देखो, अगर आप कहाँ पे खाना खाने गए, let's say चाइनीज़ खाने, रोड साइड चाइनीज़, अभी ऐसा मत करना. ओके, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. बाहर का खाना थोड़ा कम खाना, रोड साइड का थोड़ा तो ज़्यादा ही कम खाना. ओके, बट स्टिल assuming everything is okay, आप दोस्तों के साथ में गए, so you give an order, the chef ना वो पकाना चालू करता है और आपका ऑर्डर बन जाता है, और शेफ नहीं दूसरा कोई वो आके आपको प्रेजेंट करता है, आपकी टेबल पे रखता है. द शेफ ऑल्सो गेट्स अ पेमेंट, एंड छोटू जो आपकी टेबल पे आया ना, तंबी जो आपकी टेबल पे आया, ओके, उसको भी पेमेंट मिलता है. शेफ का पेमेंट डायरेक्ट लेबर, क्योंकि ही उसके बगैर तो तुम्हारा चाइनीज हाका नूडल्स, नानकीन राइस, फ्राइड राइस कैन नॉट बी मेड. बट छोटू जो है, जो सिर्फ पिकअप और ड्रॉप तुम्हारी टेबल पे आके उसने, एंड समटाइम्स इट्स लाइक अ वेटर्स जॉब. ओके, उसने 2/3, 3/4 ना आपको शेयर करके दे दिया. दैट इज इनडायरेक्ट. ओके, सो जस्ट लाइक मटीरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, लेबर भी डायरेक्ट मतलब तेरे बगैर तो हम जी नहीं सकते हैं, तेरे बगैर तो हम सोच ही नहीं सकते हैं ये वाला प्रोडक्ट बनाने का. ये दीवार हम कैसे बनाएंगे? अरे मिस्त्री की ज़रूरत है. ओके, हाँ, बट मिस्त्री तक ईटा दूसरा कोई पहुंचाता है. ओके, उसको पानी में तीसरा कोई रखता है. अच्छा, वो डायरेक्ट नहीं, वो इनडायरेक्ट है. फर्स्ट, ओवर टाइम प्रीमियम पेड फॉर specific jobs. Now hold on, what is specific job? Production. ओवर टाइम क्यों भरा? अरे बाबा अर्जेंटली वो प्रोडक्ट्स चाहिए थे, तो वर्कर्स को हमने रिक्वेस्ट किया 2 घंटे और काम करो ना, 1 घंटा और काम करो ना. उन्होंने काम किया, तब जाके वो प्रोडक्ट बना. उसके बगैर वो प्रोडक्ट टाइम पे नहीं बनता. डायरेक्ट लेबर. वेजेस पेड टू पीस वर्कर्स. व्हाट इज दिस? 1 पीस. एक और आएगा तो 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस. समटाइम्स पेमेंट पीस के हिसाब से दिया जाता है. ओके, वर्कर्स, यू वर्क टुडे, हाउ मेनी पीसेस डिड यू मेक? तो ही विल से, सर आई मेड 10, आई मेड 20, आई मेड 30. तो ऐसे कोई 10 यू मेड, टेक योर पेमेंट. 20 यू मेड, एज पर 20 टेक योर पेमेंट. तो आई रिपीट, डायरेक्ट है. जितने प्रोडक्ट्स आप बनाओ उसके हिसाब से वर्कर को पे किया जाता है. सो इट्स अ डायरेक्ट पेमेंट. थर्ड, वेजेस पेड टू मेंटेनेंस वर्कर्स. व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनेंस वर्कर्स? अरे मेन वर्कर्स आते हैं ना, उसके पहले मशीन का एक मेंटेनेंस होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन अ एयरप्लेन द पायलट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक पायलट शुरू नहीं करेगा, वेल आई नो एरोप्लेन से जाता नहीं है, बट जब तक वो बैठेगा नहीं कॉकपिट में, हाउ विल द प्लेन फ्लाई? उसका पगार डायरेक्ट. बट देन
Before the pilot and the air hostess and the passengers come, the entire plane is checked. Maintenance के एंगल से is everything working, all the engines and all the requirements, okay, सब बराबर 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 है कि नहीं. वो लोग कौन है? इनडायरेक्ट. उन लोग प्लेन उड़ाएगी नहीं, बट उनके बगैर भी काम होने वाला नहीं है. तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उन लोग डेफिनेटली काम आते हैं. मेंटेनेंस स्टाफ, indirect labor. Director's fees. Does a director actually make the product? No, Ray, he's sitting in an office. He's only doing accounting and decision making. Indirect. Salesman's commission. Salary paid to sweepers. सेल्समैन हो या झाड़ू मारने, उनका काम इंपॉर्टेंट है. मैं वो नहीं बोल रहा काम इंपॉर्टेंट, काम इंपॉर्टेंट है, बट देन वो डायरेक्टली थोड़ी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं. ओके हाँ, तो उनका इनडायरेक्ट काम है. तो दोनों इनडायरेक्ट लेबर है. द फर्स्ट क्वेश्चन हेल्प यू विथ अंडरस्टैंडिंग मटीरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट. द सेकेंड क्वेश्चन हेल्प यू विथ अंडरस्टैंडिंग लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट. एंड नाउ वी हैव द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन. छोटा नहीं है, काफ़ी लंबा है. इट हैज़ अ लॉट मोर वेराइटी. लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड रिटेल्स क्लोथिंग. यू कैन सी एक तरफ पे कपड़ा बन रहा है, एक तरफ पे कपड़ा बिक रहा है. ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू ग्रुप द कॉस्ट. बीच में देर आर मेनी कॉस्ट, 1 से लेके 20 तक है. 20 कॉस्ट विच आर लिस्टेड बिलो एंड नंबर्ड 1 to 20 इनटू द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन. अच्छा, सो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? A B C D E F H तक है. ओके, सो ये जो 20 खर्चे हैं वो ऊपर जो A से H तक, हॉस तक, हॉस नहीं है, H तक दिया गया है, उसमें से कोई किसी ना किसी के साथ कनेक्शन रखता है. तो दे आस्किंग यू कनेक्शन बताओ ना, किसके साथ कनेक्टेड है. अच्छा, एग्जाम्पल, डायरेक्ट मटीरियल, यू नो डायरेक्ट मटीरियल हमने किया. डायरेक्ट लेबर, वो भी तो हमने किया. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आने वाला है, ये क्वेश्चन में अभी आने वाला है. इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड, तो वो डी क्या है? फैक्ट्री का खर्चा, बट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है. जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल था ना, वैसे. ई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. एफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जी फाइनेंस. एंड एच एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ऑफिस का खर्चा. वेरी सिंपल. फर्स्ट वन, टेलीफोन रेंटल प्लस मीटर्ड कॉल्स. अच्छा, ये टेलीफोन का जो बिल आता है ना, वो मटेरियल है कि लेबर है कि वो सेलिंग है कि वो फाइनेंस है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, लास्ट का है. टेलीफोन का खर्चा कहाँ पे होता है? ऑफिस में. एडमिनिस्ट्रेशन इज द करेक्ट कैटेगरी. ओके, लेट्स ट्राई आउट. वेजेस पेड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफ फैक्ट्री. ये सिक्योरिटी गार्ड प्रोडक्ट बनाते? अरे बिल्कुल नहीं, वो तो फैक्ट्री के गेट के बाहर खड़े रहते. तो आई रिपीट, उन लोगों का पगार फैक्ट्री का पगार है, डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है. तो कौन से कैटेगरी में जाएगा? वो रिसर्च करते, वो सेलिंग करते. अरे रिसर्च में नहीं जाएगा, सेलिंग में नहीं जाएगा, फाइनेंस में नहीं जाएगा, वो फैक्ट्री का कॉस्ट है. डू यू सी पॉइंट नंबर डी? इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड. वो जो प्रोडक्शन है ना, उसका मतलब है फैक्ट्री ओवरहेड. सो वेल, आई हैव टू राइट इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड. द वर्ड ओवरहेड, दिस इज हेड. अगर इस पे असर मारता है तो डायरेक्ट, अगर इसके ऊपर जाता है या अज्जू बज्जू में घूमता है तो वो है ओवरहेड, इनडायरेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, पार्सल सेंड टू अ कस्टमर. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. कस्टमर को पार्सल आप टू सेल समथिंग ना, प्रोडक्ट आप बेचोगे ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो जाएगा. वेजेस ऑफ operatives. A driver is an operative. He is operating a particular machine and equipment. Okay. In cutting department, direct labor. क्यों? अरे many times products have to be made out of metal, steel, iron. उसको पहले कट करना पड़ेगा ना. अगर वो कट नहीं करोगे तो वो डिज़ाइन नहीं बन पाएगा. सो आई रिपीट दैट, कटिंग के बगैर प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं बन सकता है. हाँ, तो उसके लिए जो वेजेस आप देते हो वो आप स्किल्ड वर्कर्स को देते हो. दे आर डायरेक्ट पीपल. ओके, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन. फिफ्थ वन, डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द लेबोरेटरी. आई वॉज टॉकिंग इन द अदर लेक्चर, वैक्सीन्स.
कहाँ पे बनी? लेबोरेटरी में बनी। अभी वो वायरस लेबोरेटरी में बना कि नहीं वो तो नहीं पता, वुहान में क्या हुआ, ओके वो नहीं पता, बट डेफिनेटली वन थिंग दैट आई कैन से कि प्रोडक्ट का रिसर्च होता है लेबोरेटरी में. सो दिस इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. नेक्स्ट वन, wage. 6 1, wage of forklift to truck drivers who handle raw material. They are only picking up the raw material, keeping it down, and picking up and keeping it down. They are not working on the raw material. Forklift, okay, is a machine which lifts and brings down, क्योंकि the raw material sometimes is in big packages, या तो वजन काफ़ी होता है. ओके सो ये डायरेक्ट तो बिल्कुल नहीं है. ऑफिस में भी ये काम नहीं करते हैं, सेलिंग में भी ये काम नहीं, ये फैक्ट्री में काम करते हैं. इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड. देन 7th वन, wages of storekeepers in material store. Again, this is not anything to do with office, selling, research नहीं. ये जो मटीरियल स्टोर है ना, ये फैक्ट्री के अज्जू बज्जू में ही रहता है. प्रोडक्शन किया, स्टोर्स में रख दिया, गोदाउन में. तो ये फैक्ट्री का ओवरहेड है. फैक्ट्री का ओवरहेड मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड. सो अगेन इनडायरेक्ट प्रोडक्शन overhead. Continuing, because there are 20 items. Okay, so the next one, chief accountant salary. Simple accountant ऑफिस में काम करता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स ऑन अ डिलीवरी वैन. होता है ना डिलीवरी वैन पे लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ सब जगह पे लोग पेंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट का पेंटिंग, तो सेलिंग के लिए काम आता है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा. ऑडिटर्स फीस. ऑडिटर का मतलब अकाउंट्स को चेक करने का. ओके तो वो तो ऑफिस में होता है. एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ओके ये शॉर्ट फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेशन. कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सिंपल, तो नॉट कॉम्प्लिकेटेड, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट, लंबा रामायण में कर रहा हूँ. नेक्स्ट, लुब्रिकेंट्स फॉर स्विंग मशीन. वी डिड दिस प्रीवियसली. ओके क्या है? फैक्ट्री का खर्चा है. इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है, बिकॉज वो जो लुब्रिकेंट होता है ना, ऑयलिंग, वो थोड़ी प्रोडक्ट में डालते, वो मशीन में डालते, मशीन प्रोडक्ट बनाता है. एंड यू डोंट रिक्वायर दिस लुब्रिकेंट्स इन ऑफिस, सेलिंग, रिसर्च, तभी नहीं लगता है. 13, दिस इज लाइक जमाना हो चुका है, ये बंद हो चुका है, बट था क्वेश्चन में तो बता दिया मैंने. फ्लॉपी डिस्क फॉर जनरल ऑफिस कंप्यूटर. वेल यू डोंट यूज अ फ्लॉपी डिस्क नाउ. ओके वो तो आजकल कंप्यूटर्स में दिखता भी नहीं है, ऑब्वियसली it's gone, पुराना टेक्नोलॉजी. बट USB, ओके माइक्रो USB एंड टाइप B, टाइप C, ओके अलग अलग जो USBs रहते हैं वो ऑफिस में काम आता है. तो ऑफिस में. लास्ट वन, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑफिस फोटो कॉपी मशीन. ऑफिस में देर इज़ अ ज़ेरॉक्स मशीन, फोटो कॉपी मशीन, उसको मेंटेन करना पड़ता है. अगर वो ख़राब हो गया तो somebody comes, maintains, cleans it, removes the dust and everything. तो वो हो तो ऑफिस का ही खर्चा है ना. तो ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाला. ओके एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट, लास्ट फ्यू, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट. सी बैंक ओवरड्राफ्ट इज लाइक अ लोन, छोटा सा लोन, टेम्पररी लोन. टू obtain that you have to pay interest. ये फाइनेंस का खर्चा है. ऑफिस के साथ में, सेलिंग के साथ में, फैक्ट्री के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है इसका. ये पैसों के साथ संबंधित है, फाइनेंस. नेक्स्ट, मार्केट रिसर्च. ना होल्ड ऑन, सब स्टूडेंट से सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. नहीं आगे पढ़ो. अंडरटेकन प्रायर टू अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च. प्रोडक्ट बनाने के पहले जो रिसर्च होता है दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ये तो प्रोडक्ट बेचने के पहले. प्रोडक्ट कब का बन गया? बेचने के पहले. तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, वो अलग है. तो डोंट गो जस्ट विद द वर्ड सो रिसर्च आया ना तो रिसर्च में जाना चाहिए. नहीं, वो प्रोडक्ट बना ही नहीं. प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्या डिज़ाइन होगा, वो प्रोडक्ट बनने के पहले. कैरेज ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. यू सी रॉ मटेरियल इज डायरेक्ट मटेरियल, बट मटेरियल को लाने का जो खर्चा होता है, ट्रक का, रिक्शा का, टैक्सी का, टेम्पो का, जो भी कैरेज का खर्चा, वो भी डायरेक्ट मटेरियल. ओके बिकॉज विदाउट दैट हाउ कैन यू
bring the material. Point number 18, royalty paid on number of units of a particular product produced. Confusion. What do you mean by royalty? See, this is a normal box, चश्मे का box, okay. But अगर इस पे रेबैन लिखे, रेबैन, सो रेबैन तो बहुत महंगा है, हाँ तो बराबर कॉस्टली है, उसका नाम ही इतना फेमस है. अच्छा, तो ओकली, ओकली अगेन इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड. इफ़ वी राइट तो न्यू बहुत महंगा हो जाता है. बट आई रिपीट, बट मैं थोड़ी रेबैन हूँ जो मैं यहाँ पे रेबैन टाइप करूँगा, छापूँगा. हाँ, बट एक काम कर सकते हैं, आई विल गो टू रेबैन एंड आई विल टेल रेबैन कि रेबैन आपका नाम जो है ना रेबैन, कैन आई यूज़, आई विल पुट इट हियर एंड देन आई विल सेल, दिस विल सेल लाइक हॉट केक्स. अरे जल्दी जल्दी बिकेगा, रेबैन लिखा ना इसके लिए. अभी रेबैन विल नॉट फ्री का गिव मी दैट परमिशन, they will say pay money, I have to pay money, that is called as royalty. So I repeat, 1, ये चीज़ बनने के लिए प्लास्टिक लगता है, that is material. लेबरर लगेगा, लेबरर will open close, okay, he will make sure everything is correct. कटिंग वटिंग करना है तो वो करेगा. तो to make this you require labor, to make this you require material, but to put Ray-Ban you require permission. That is called as royalty. अदरवाइज ये रेबैन के नाम से नहीं बन सकता. तो इसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस. इफ यू रीड अबाउट ए बी सी, ए इज मटीरियल, बी इज लेबर, सी इज डायरेक्ट एक्सपेंस. तो योर क्वेश्चन शुड बी, सी डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आता है, रॉयल्टी. जो मटीरियल नहीं है, लेबर नहीं है, बट डायरेक्ट है, उसके बगैर तुम प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो. तो रॉयल्टी इज डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे आ गया. 19th, दैट्स इट, हो गया. रोड लाइसेंसेस फॉर डिलीवरी व्हीकल्स. व्हाई डू यू रिक्वायर डिलीवरी व्हीकल? सेलिंग के लिए. हाँ, तो उसका लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है ना, अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा. अमाउंट पेएबल टू अ कंपनी, ओके, फॉर ब्रॉडकास्टिंग म्यूजिक थ्रू आउट द फैक्ट्री. ओके, जस्ट चेंजिंग द पोजिशन क्योंकि आंसर वहाँ पे आने वाला है. फैक्ट्री में वर्कर्स आर वर्किंग, फैक्ट्री इज ह्यूज, सब जगह पे माइक्रोफोन, स्पीकर्स, उसमें से म्यूजिक, ओके, धीमी धीमी आवाज में. ओके, रॉक म्यूजिक नहीं आता है, नहीं नहीं नहीं, रॉक म्यूजिक नहीं आता है. वेरी वेरी सूदिंग म्यूजिक, लोग सोते भी नहीं है, बट इट हेल्प्स काम द पीपल्स माइंड्स एंड शांति से वो काम कर सकते हैं. ओके, स्पेशल काइंड ऑफ म्यूजिक इज रिक्वायर्ड. हाँ, सो फॉर दैट पेमेंट इज डन टू अ कंपनी एंड दैट कंपनी इज टोल्ड कि बाबा अपनी फैक्ट्री में म्यूजिक बजना चाहिए ताकि वर्कर का स्ट्रेस बढ़े नहीं, शांति कम हो जाए. हाँ, तो उसके लिए यू मेक अ पेमेंट टू समबडी. ओके, दे, उन लोग रेडियो चलाते, कंटिन्यूसली रेडियो चलाते रहते क्योंकि फैक्ट्री में चलाते हैं, तो फैक्ट्री का खर्चा हो गया. इनडायरेक्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री ओवरहेड. सो आई रिपीट, 20 आइटम्स आई हैव कवर्ड अप. एंड जस्ट अ मिनट, मैं मेरा पोजीशन बदल देता हूँ. आई होप आपको ये समझा कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ कॉस्ट आई एक्सप्लेन लास्ट टाइम, मटेरियल का आज हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया, लेबर का हमने आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया, एंड सो मेनी, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री, finance, etc., etc., etc. That this lecture has increased your knowledge about classification का यूज़ आपको किस तरह करना है. ओके, this almost brings this chapter to an end. I will be meeting you with the continuation with the next chapter. Okay, so till that time, it's my request, if you did understand all the explanation, please do like the lecture. Okay, share this with all your friends so that आपके दोस्तों को भी पता चले कि एक YouTube चैनल है जिसका नाम है स्टीवन सर मेक्स इट इजी, वेयर स्टीवन सर इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू मेक accountancy and finance and taxation related subjects a little bit more simpler for you. Okay, बाकी कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट डेफिनेटली लिख सकते हो. Okay, take care of yourself, take care of your seniors and juniors, take care of your lovely family members. Till the time we meet again, good day to all of you. God bless. Bye for now.